Good morning, all of you. Today we discuss area of general quadrilaterals. वही same chapter, mensuration, topic area of general quadrilateral. फॉर्मूला लिखा था हमने इसका हाफ इंटू डी मल्टीप्लाई बाय h1 प्लस h2, है ना? कुछ ऐसा ही था फॉर्मूला अपना, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, नोट डाउन करें, इसके बाद देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस. एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल. फाइंड द एरिया ऑफ द given quadrilateral, and this quadrilateral is something this type. This is the diagonal AC. This is perpendicular height known as h1 3 centimeter, and that is h2 5 centimeter, and length of diagonal 6 centimeter. Length of diagonal 6 centimeter. तो लगाए इसका फॉर्मूला डायरेक्टली. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई विद सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट्स, यानी h1 प्लस h2. Here diagonal is 6 centimeter, h1 is 3 centimeter, then h2 is 5 centimeter. h1 h2, then find area of quadrilateral. Half into diagonal, diagonal is 6 multiplied by h1 is 3 plus 5. It gives half multiplied by 6 multiplied by 8. 2 1 are 2, 2 4 are 8, 6 4 are 24 centimeter square. Okay, very simple question था. चलिए क्वेश्चन लिखे आपके लिए यहाँ, और डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहाँ. डायगोनल is equal to 50 centimeter h1 and h2 are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the area of quadrilateral (20 centimeter, 10 centimeter, 50 centimeter. ठीक है, करो कंप्लीट इसको. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ quadrilateral, and area of quadrilateral is equals to half. डायगोनल को d लिखते हैं बेटा, है ना? h1 plus h2 half d. Diagonal is 50 and 10 plus 20, then half 50 30, one time 15 time, and 15 5 just 75, 750 centimeter square. Note it.
एरिया ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस के एरिया कई टाइप्स के होते हैं ना। चले देखिए, विजिट करें क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने नॉर्मल तो क्या लिखा था, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन हाफ इनटू d1 इनटू d2, है ना। देयर आर टू डायगोनल्स इन अ rhombus d1 and d2, then area of rhombus is equals to half into d1 into d2 लिखा हुआ है हमने क्वेश्चन में, है ना। चलो उसी के बेस पे चलें। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. Diagonals है ना, 1 and 2. So solution is d1 is equals to 7.5 centimeter and d2 is 12 centimeter. So area of rhombus is equals to half multiply with d1 multiply with d2. Half d1 is 7.5 and d2 is 12. 2 ones are 2, 2 6 are 12. Then 7.5 multiply with 6. 45.00 रिमूव किया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सेल्फ करने के लिए, ठीक है। फिर उसका आंसर चेक करेंगे हम लोग यहाँ। The diagonals of a rhombus are 7 centimeter and 9 centimeter. Then find the area of rhombus. Diagonals 7 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the area of rhombus. ओके, कंप्लीट करो बेटा फटाफट इसको। एक बार डायगोनल्स है ना, देन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, d1 is equals to 7 centimeter and d2 is equals to 9 centimeter. Then area of rhombus half multiply with d1 into d2. Then half d1 is 7, d2 is 9, 9 sevens are 63 upon 2. ये मिला हमें 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसी रोम्बस का, है ना, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने रोटेट कर दिया, जो घुमा दिया, माइंड डाइवर्ट कर दिया इसका। और ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज, वहां साइड की बात कर रहा है, ठीक है। चलो find the area of rhombus
whose side is 6 centimeter and altitude is 4 centimeter if one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. ठीक है, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को रोटेट कर दिया है ना, माइंड डाइवर्ट कर दिया क्वेश्चन का भी। क्या कहा क्वेश्चन में हमने? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose sides is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter। हमने ये देखा कि हमारा रोम्बस जो होता है वो भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम ही तो है ना। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? बेस इनटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसी को उठा के चलते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। We know that the area of rhombus is equal to base multiply with height because it is also a parallelogram. Okay, then base is 6 centimeter and height is 4 centimeter. Then area of rhombus 6 4s are 24 centimeter square. Area of rhombus 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमने एक फॉर्मूला और पता था हमारे पास कि रोम्बस का एरिया जो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2B होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2B होता है ना। अगेन so we need to find length of second diagonal, है ना। अगेन area of rhombus is equal to half multiply with D1 multiply with D2, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस क्या फाइंड किया बेटा अभी हमने? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या था? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ का हाफ, फर्स्ट डायगोनल इज गिवन एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर, है ना। देन D1 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड D2 1 टाइम 4 टाइम, then D2 is equals to 24 upon 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, therefore D2 is equals to 6 सेंटीमीटर। यानी अपना सेकंड डायगोनल क्या मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को करो फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको देते हैं करने के लिए, ठीक है। चले मूव करते हैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेम एज क्वेश्चन होगा, सेम प्रोसीजर बट न्यू नंबर्स न्यू डिजिट्स, ठीक है। whose side is 5 centimeter, altitude 4.8 centimeter, side 5 centimeter, 4.8 centimeter, and first diagonal is 6 centimeter. So find the second diagonal. करो उसको।
फास्ट बेटा फास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर और उसकी एल्टीट्यूड दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। Then step first, we know that area of rhombus is equals to base multiply with height. Then base is 5 centimeter, height is 4.8 centimeter. 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 24.0 and 24 centimeter square. Again area of rhombus is equals to half multiply with d1 into d2. So area of rhombus is 24, 1/2, d1 मिला था हमें 6 into d2, 1 time then 3 time, then d2 is equals to 24/3. It means 8 3s are 24. Then second diagonal is 8 centimeter. Second diagonal is 8 centimeter. करो जल्दी नोट करो बेटा, देखो जिसके जिसके गलत हुए थे। फर्स्ट पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पीडीएफ। और आप लोग पीडीएफ को आज ही चेक कर लेना बेटा, ग्रुप में क्या वहां ड्राइव पर, वो आज ही मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। मे भी पॉसिबल है अभी क्लास एंड होने के साथ साथ ही मैं उसको सेट कर दूं। क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट थ्री 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeters and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor. If the cost of per meter square is ₹4। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लोर है बिल्डिंग का, उसमें 3000 टाइल्स लगी हुई है जो रोम्बस के शेप की और रोम्बस की डायगोनल हमें गिवन है, ठीक है। उसके फ्लोर पे क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है। तो पॉलिश करने का खर्चा जो है, कॉस्ट वैल्यू जो है वो निकालें ₹4 पर मीटर स्क्वायर से। तो नो डाउट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रोम्बस, है ना, एरिया ऑफ रोम्बस।
यानी एरिया ऑफ वन टाइल आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है अपने पास में, 3000 टाइल्स लगा रहा है हम लोग, है ना। तो फिर 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ₹4 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, वो चला जाएगा आपका टोटल कॉस्ट वैल्यू में। ठीक है, करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल D1 is equals to 45 centimeter. This is, and D2 30 centimeter. Then area of one tile, half D1 into D2. Therefore, half D1 is 45, D2 is 30, 2 1 are 2, 15 times. 15 5 are 75, carry luggage 7, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो वन टाइल कितनी है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी थी अपने पास, 3000। तो टोटल टाइल्स 3000, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, वन टाइल का एरिया कितना बेटा, कि 675, 3000 के लिए 3000। बट एक चीज देखो, हमारा एरिया आ रहा है सेंटीमीटर में, बट कॉस्ट दे रही है मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ इसको यहीं पर किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 20 से 20, 10 से 10 कट। ठीक है, 10 से 10 कट हो चुका है। अब कर दे मल्टीप्लाई, 3 का 5 कैरी 1 2 अपॉन 10, तो 202.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना एरिया ऑफ फ्लोर। 3000 टाइल्स लगी कहाँ है, फ्लोर के ऊपर, है ना। देन एरिया ऑफ फ्लोर 202.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालें, तो ₹4 मल्टीप्लाई बाय 202.5, ₹810। यानी कुल मिलाकर इस फ्लोर पे पॉलिश करने का खर्चा कितना लगेगा, ₹810। तो यहां तक कंप्लीट होता है अपना फर्स्ट पीडीएफ का पार्ट ऑफ द फर्स्ट पीडीएफ। और वो पीडीएफ अभी क्लास एंड होने के बाद ही आपके ड्राइव पे अपलोडेड हो जाएगी। तो अपना मास्टर लिंक चेक करना, उस मास्टर लिंक में 100% मिलेगी फाइल आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फॉर्मूलाज के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।